السلام علیکم دوستو، میری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ کریٹیکل پرابلم کے بارے میں ہے، اور وہ کریٹیکل پرابلم کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ مائی فرینڈز، میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مٹی کو پلانٹ اگانے کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیاری آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کی یہ بھی جب میں نے نیو بنائی تھی تو اس وقت بھی میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ کس طرح کی مٹی کو میں نے اس میں بنا کر اس کیاری میں جو ہے وہ یوز کیا تھا۔ تو یہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ کافی سارے پھول ہیں، سبزیاں ہیں، ٹماٹو پلانٹ ہیں، بینگن پلانٹ ہیں، اور یہ دیکھیے یہ وائٹ بینگن بھی لگے ہوئے ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ دیکھیں کتنا بڑا وائٹ بینگن بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ سب اسی مٹی کا ہی کمال ہے جو میں نے بنا کر آپ کو تیار کر کے دکھائی تھی۔ تو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مٹی کو پلانٹ اگانے کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں اور مٹی کی کتنی اقسام ہیں، اور ایک پلانٹ کو اپنی گروتھ کرنے کے لیے کون کون سے ایلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ مٹی کے متعلق انفارمیشن دینے والا ہوں۔ تو یہ ویڈیو مائی فرینڈز آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل اور مین کریٹیکل پرابلم کو سولو کرنے والی ویڈیو ثابت ہوگی۔ اس لیے آپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں اور یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہماری یہ ویڈیو، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے اس چینل میں تمام ویڈیوز ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور ہمارے اس ویڈیو کو جو یہ ویڈیو ہے اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اور سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اس پلانٹ کے پاس کہ جو اس ویڈیو کا جو ریزن بنا ہے، جو پلانٹ اس ویڈیو بنانے کا ریزن بنا ہے، جس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے، اس پلانٹ کے پاس چلتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے وہ چائنا لیمن کا پلانٹ۔ اس کو میں آج اس گملے سے نکال کر کسی بڑے کنٹینر میں ریپورٹ کرنے والا ہوں۔ دیکھیں اس کی پروننگ میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے، ان کی ویڈیوز بھی میری موجود ہے پروننگ کی اور اس کی کیئر کی۔ یہ چائنا لیمن کا پلانٹ ہے اور یہ 12 انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے ابھی جو کچھ عرصہ بعد موسم بہار شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے میں اس کو رپورٹ کروں گا، تاکہ یہ اپنی جب نیو گروتھ سٹارٹ کرے گا تو اس کو زیادہ سپیس چاہیے ہوگی اپنی روٹس کو ڈیولپ کرنے میں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس کے لیے میں نے رپورٹ کرنے کے لیے یہ بالٹی خریدی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، آج موسم بہت ٹھنڈا ہے۔ تو یہ بالٹی جو ہے، تو یہ میں نے پلاسٹک کی بالٹی اس کے لیے خریدی ہے۔ تو دوستو اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے جو مٹی کا گملہ ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ یہ بالٹی میں نے اس لیے خریدی ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے مارکیٹ میں جو نرسری وغیرہ سے اس سائز کا جو آپ کو مٹی کا گملہ ملے گا وہ تقریباً کم از کم 600 روپے کا ہے، اور یہ بالٹی میں نے 250 روپے کی بازار سے خریدی ہے۔ اب آپ پوٹ میں لگائیں یا اس بالٹی میں، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ چائنا لیمن پلانٹ ہے، اس کو آپ پوٹ میں لگا سکتے ہو۔ کچھ جو فروٹ والے پلانٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بڑے کنٹینر میں لگا سکتے ہیں، جیسے کہ پپیتا، چائنا لیمن وغیرہ، مگر کچھ فروٹ والے پلانٹ کو صرف زمین میں ہی لگایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی روٹس کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہیں، جیسے کہ امرود، آم، کھجور وغیرہ یا انار۔ مگر امرود کے اب جو ہے وہ چائنا ورائٹی کے جو ڈوارف سائز کے، بونے سائز کے، چھوٹے قد کے پلانٹ جو ہیں وہ نرسری پر آ رہے ہیں، ان کو فروٹ بھی کافی لگتا ہے، آپ ان کو بھی اس گملے میں لگا سکتے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ فروٹ دیتے ہیں،
ओके तो दोस्तों, तो ये बाद में देखते हैं कि इस प्लांट को मैं गमले से कैसे निकालता हूँ, या इसको इसके क्यूब से मैं ही निकालूंगा, या कि शायद मुझे ही गमला ही तोड़ना पड़े। तो अब चलते हैं मिट्टी की तरफ। तो ये है माय फ्रेंड्स, ये है मिट्टी। तो इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैंने लेमन का प्लांट दिखाया है, तो इस प्लांट की प्रूनिंग और इसकी केयर की वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने पॉट या क्यारी में छोटे प्लांट लगाने हैं, पॉट या क्यारी में छोटे प्लांट लगा मतलब कि फूलों वाले या सब्जियों वाले प्लांट के लिए, तो मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए और कैसे बनाते हैं, तो मैं अभी जो है वो आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो ये 3 ढेर आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी मैं आपको इस प्लांट के लिए ये सोइल, ये फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, मस्त है। यही प्लांट के लिए यही मिट्टी, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, यही फार्मूला इसके लिए जो है बहुत यूज़फुल है। तो ये देखें, पहले ये नहर से मैं कल ही बालू मिट्टी निकाल कर लाया हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट है। और ये काऊ डंक है डीकम्पोज किया हुआ, जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाई थी। और ये वाली लीफ कंपोस्ट है। तो इनका रेशो इस तरह बनाना है इस मिट्टी का कि ये 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा इसका काऊ डंक का और एक इसका लीफ कंपोस्ट का। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, ये लीफ कंपोस्ट आप कुछ ज़्यादा भी कर लें, यहाँ तक कि आप 50-50 भी कर सकते हैं, 50-50 का कम्बिनेशन भी, लेकिन मैं आपको एक हिस्सा इसमें डालकर दिखाता हूँ। मगर ये जो डीकम्पोज शुदा काऊ डंक है, इसको रेशो आप नहीं बढ़ा सकते, ये सिर्फ एक हिस्सा ही इसमें डलेगा सोइंग मीडिया में। मसलन ये 3 अगर हिस्से हैं तो एक हिस्सा इसका ही डलेगा। तो अब इनको तीनों को मैं मिक्स की लेता हूँ अच्छी तरीके से। इस प्लांट के लिए ये मिट्टी बहुत ही बेस्ट है, देखिए। और दोस्तों एक और बात, जो हम सैंड डालते हैं, रेत, जो कि मकानों वगैरह में बनाने में काम आती है। तो जी दोस्तों, मुझे अज़ान होने लग गई थी, आपने भी सुनी होगी अज़ान की आवाज़। जब भी अज़ान हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अक्सर वीडियो में कैमरा जो है पॉज कर लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जो मकानों वगैरह में रेत इस्तेमाल होती है, बारीक होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छी अगर लेनी हो तो एक मोटी रेत होती है, जिसे हम खाका बोलते हैं, वो इस सूरत में इसमें डालनी है कि अगर आपके पास ये बालू मिट्टी ना हो, कुछ चिकनी मिट्टी वगैरह हो, तब आपने इसमें जो वो रेत है वो ऐड करनी है, वो भी 1/3 के हिसाब से, उसका भी रेशो मैंने बता दिया है। अदरवाइज़ आपने, अगर आपके पास ये सिल्ट सॉइल है यानी कि बालू मिट्टी है, तो तब आपने रेत का, सैंड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये अब बेहतरीन मिट्टी तैयार हो चुकी है, तो इसमें अब मैं इस प्लांट को लगाऊंगा। तो देखा आपने कि छोटे प्लांट, सब्जियों या फूलों के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें। और माय फ्रेंड्स, अब मैं आपको बड़ी तफसील से समझाता हूँ कि मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। और अगर आपके पास गोबर या लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते, या आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आपके करीब मिट्टी लाने के लिए खेत नहीं है, तो फिर आप बेहतरीन ज़रख़ेज़ मिट्टी कैसे बना सकते हैं। तो माय फ्रेंड, शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि हमारी फर्स्ट जो वीडियो थी, पहली वीडियो थी इस चैनल में, वो मिट्टी के बारे में ही थी। हमारी प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, ये मिट्टी मैंने जो तैयार की थी इसको लेमन प्लांट लगाने के लिए, उसमें से
थोड़ी सी मैं ये डालकर इस डब्बे में लाया हूँ ताकि अपने व्यूवर्स को अच्छी तरह वीडियो बनाकर समझा सकूँ। मैंने यही लेमन प्लांट इसमें मैं ये शिफ्ट करूँगा। ये सिल्ट सॉइल है, मतलब कि भालू मिट्टी है। ये छलनी से गुजारी हुई है, इसलिए आपको इस तरह बारीक महसूस हो रही है। तो इसमें मैंने जो बिल्कुल भी गोबर या लीफ कंपोस्ट नहीं डाली, तो सिर्फ DAP मिक्स करी है। अगर मैं चाहता तो इसमें भी ऑर्गेनिक खादें जो है मिला सकता था, मगर सिर्फ इसलिए नहीं मिलाई कि अपने व्यूवर्स को ये दिखा सकूं कि मेरे वो बहन भाई जो कि गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या बिगनर हैं, नई गार्डनिंग शुरू की है, तो इनके पास गोबर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मुयस्सर नहीं होती। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस भालू मिट्टी में कुदरती तौर पर वो तमाम एलिमेंट मौजूद हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। और DAP में 18% नाइट्रोजन भी है और 46% जो है फास्फोरस भी है। इट्स ओके। तो आप भी इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल बना सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि DAP कैसे मिक्स करनी है और कितनी मिट्टी में कितनी DAP डालनी है। दरअसल एक्चुअली मैंने ये जो सॉइल तैयार की है मैंने ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ, मगर फिर भी आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। 1 फुट मिट्टी ले लें। फुट किसको कहते हैं, मसलन ये मैंने डब्बा है, इसकी मैश कैसे करनी है। तो इस डब्बे की जो हाइट है वो भी 1 फीट होनी चाहिए। इसकी विड्थ जो है वो भी जो है 1 फीट की होनी चाहिए। इसकी इस साइड से जो विड्थ है वो भी 1 फीट की होनी चाहिए, यानी कि तीनों तरफ से वो फुट बाय फुट का हो। तो उसमें जो सोयल आप भर कर रखेंगे तो उसकी पैमाइश जो है वो 1 फीट में आएगी। तो इसमें आपने सिर्फ 1 फीट मिट्टी में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मसलन ये देखें, DAP है मेरे पास। इसमें आपने जो है सिर्फ 3 चाय के जो चम्मच हैं वो आपने इसमें इस तरह मिलाने हैं। हालांकि ये मिट्टी मैंने पहले तैयार कर ली थी, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए अपने व्यूवर्स को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अक्सर वीडियो में यूरिया की मकदार पानी में हल करके बताई हुई है, यूरिया खाद भी अगर यूज़ करनी है तो 1 गैलन पानी में चाय के 3 चम्मच होने चाहिए और 4.5 लीटर पानी को 1 गैलन बोला जाता है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको हर तरह की जो फर्टिलाइज़र है, ख्वाह वो ऑर्गेनिक हो, इसको सही रेशियो में मिट्टी या पानी में डिज़ोल्व करने का बताता रहता हूँ। और अगर आपने DAP 1 फीट मिट्टी में 4 चम्मच डाले तो आपका प्लांट बर्न हो सकता है। इस तरह मिट्टी में डलाकर इसको ना ऐसे हाथ से आप जो है मिक्स कर लें। तो अगर आपने 4 चम्मच भी डाल लिए तो इससे आपका प्लांट बर्न हो सकता है, क्योंकि मिट्टी में इसमें नाइट्रोजन का सोर्स बढ़ जाएगा। तो ये फर्टिलाइज़र को हल करने के तमाम रेशो और मकदारें जो हैं, जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मंजूर शुदा हैं। और अगर आप इस रेशो से कम करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, अदरवाइज़ अगर आप तजावज़ करते हैं इस मकदार से जो कि मैं बता रहा हूँ, तो ये खादें आपके प्लांट को बर्न कर सकती हैं, डेड कर सकती हैं। तो इस तरह आपने DAP डालकर मिक्स कर लेना है और उस मिट्टी को किसी कंटेनर में डालकर पानी इसको दे देना है। तो इस तरह ये जैसे मिक्स हो गई, तो इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको पानी डाल देना है। तो पानी डालने के बाद दूसरे या तीसरे दिन, जब भी जितने दिन भी लगें, इसको खुश्क कर लें, ड्राई कर लें। इस मिट्टी को कंटेनर से चाहे बाहर निकाल कर आप इसको ड्राई करें या कंटेनर में, ये आपकी मर्ज़ी है। और जब ये मिट्टी खुश्क हो जाए तो इसको हाथों से अच्छी तरह ऐसे तो मिक्स तोड़ लिया जाए, इसमें बुरबुरी कर लिया जाए, ताकि इसमें जो कंकर वगैरह हैं, या अगर आपके पास छलनी है तो छलनी से गुजारें। मेरे पास तो छलनी है, ये मिट्टी भी मैंने छलनी से ही गुजारी हुई है, इसलिए ये देखें इतनी बारीक है। ये देखें
इससे ये होगा कि DAP में जो नाइट्रोजन थी वो मिट्टी ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सक कर लिया और ज़्यादा सोर्स नाइट्रोजन का मिट्टी में ख़त्म हो गया है। और DAP में बोन मेल होता है, तो इसको बारीक करने से वो बोन मेल अच्छी तरह इस मिट्टी में जो है वो मिक्स हो जाता है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मसलन DAP के दाने हैं, ये ब्राउन कलर के। इसके नीचे जो है अगर इसको गीला करके देखेंगे तो वाइट सा आपको जो है वो नज़र आएगा, वो बोन मेल होता है। तो वो बोन मेल अच्छी तरह इस मिट्टी में मिक्स हो जाता है और मिट्टी में फास्फोरस जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। बोन मेल में DAP में फास्फोरस के लिए डाला जाता है। और जो DAP खाद है आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी की लें, क्योंकि आजकल ये मैं बता दूं, आजकल मार्केट में नकली खादें भी मार्केट में आ रही हैं। तो आप एंग्रो जो कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी, इसी की खाद लें। और माय व्यूअर्स, अगर आप DAP जो है मिट्टी में डालकर इस तरह मिक्स करके पौधा लगा देते हैं और पानी डाल देते हैं और समझते हैं कि हमें इतने झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है कि पहले इसको मिट्टी को ड्राई किया जाए फिर हाथों से यूँ मसला जाए, तो आप गलती करते हैं। इस तरह आपका प्लांट बर्न हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैंने ये मिट्टी तैयार कर ली है। अब ये वीडियो ख़त्म करके मैं इस लेमन प्लांट को लगाना चाहता हूँ। इस मिट्टी को पूरे जो है मुझे 8 दिन हो चुके हैं तैयार किए हुए, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट मिट्टी के बारे में मज़ीद शॉर्टकट में बता दूं, क्योंकि मेरा ये लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर मेरे वो बहन भाई जो कि शहरी आबादी में रहते हैं वो खेत या नहर की मिट्टी हासिल नहीं कर पाते, तो भालू मिट्टी नर्सरी वालों से ख़रीदें। और अगर किसी के पास किसी इलाके में आपके पास खेत हैं तो ज़रखेज़ खेत की मिट्टी, वो खेत की मिट्टी जहाँ जिस खेत में फसल अच्छी होती है वो लें। अगर मिट्टी की पहचान करनी है तो थोड़ा सा साफ़ मिट्टी लें ऐसे, तो इसको ज़ुबान से थोड़ा चख कर देखेंगे तो नमकीन महसूस हो तो वो मिट्टी मत यूज़ करें, क्योंकि उसमें नमकियात ज़्यादा हैं, वो कलर वाली मिट्टी है। बालू मिट्टी नहर की होनी चाहिए, ना कि ज़मीन से नीचे से निकलने वाली बालू मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहर की मिट्टी में कुदरती तौर पर फास्फोरस, तांबा, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम वगैरह होते हैं। बालू मिट्टी की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी प्लेलिस्ट से वीडियो देख लें। तो दोस्तों मैं अब आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों मैंने मिट्टी के बारे में जितना भी आपको बता दिया इतना ही काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी हो कि एलिमेंट क्या होते हैं, pH लेवल क्या होता है, तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जल्द ही मिट्टी के बारे में मज़ीद जो वीडियोस है वो अपलोड करने वाला हूँ, तो जिसमें हम आपको एक तरतीब से मिट्टी के बारे में और इसको तैयार करने के बारे में तमाम ऑर्गेनिक खादें तैयार करने और इसके इस्तेमाल और फ़वाइद का बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ओके, तो दोस्तों सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर कर दें। ओके, तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। ओके, तो बाय।